Assalamu alaikum everyone, my name is Muhammad Awar Zahid and welcome to the second part of the potentials of the neurons. In the first part we talked about the resting potential, we talked about how it is controlled, how it is established, okay? And we also talked about nerve impulses. In this video we'll be talking about action potentials, okay? So what I want to talk to you guys about real quick is कि हमारे पास ना guys, let's say this is a domino that is lying on the floor, ठीक है? Please watch the previous video if you haven't, otherwise this video आप लोगों को इतनी कोई खास समझ नहीं आने वाली. Alright, okay, so this let's look at it this way, okay? The domino was on the floor, ठीक है? मैंने एनर्जी इन्वेस्ट करके इसको ऐसे करके खड़ा कर दिया, ठीक है? Okay, now guys what is happening is कि I'm sort of holding it यहाँ से and I'm not letting it fall. I'm investing energy to not let it fall, and this exact thing is basically the resting potential. Okay, I'm investing energy, but then guys I just let it go. It goes like tuck, sorry, ये गिरता है इस पे, 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 ठीक है? अच्छा, now these individual arrows, they are showing the action potential moving, okay? And this entire thing is basically the impulse, okay? This entire thing is the impulse. And guys, what I want you to know first of all that this is going to be a passive process, ठीक है? Please don't be confused thinking कि oh action potential आ रहा है तो maybe it's requiring energy. No, this is just going to be a reversal, ठीक है? हम इसको describe इस तरह करते हैं कि this is essentially a brief change. I'll write the definition here because as you guys have figured it out कि they love to go for these definitions, ठीक है? So it is essentially going to be a brief change in potential का difference across membrane from, अच्छा अब ये चीज़ देखो, -65 millivolts to 40 millivolts. Guys, now listen, I didn't talk about this in the previous video. Okay, this side is negative, then we'll say it's -65 millivolts, ठीक है? And जब यहाँ पे अंदर आ जाते हैं charges, then it becomes +40 millivolts. And this checks out because we said the inside is negative, the outside is positive, right? तो inside start में क्योंकि वो negative होती है वो -65 millivolts पे बैठी हुई होती है, ठीक है? और outside हमारे पास positive होती है, ठीक है? When there's a reversal, ठीक है, this side is going to be becoming 40. I won't call it a reversal, I would say कि एक temporary वो आ गया हमारे पास, disturbance आ गई है, ठीक है? एक change आ गया in potential difference. Okay, so -65 millivolts to 40 millivolts is going to be our action potential. Okay, as simple as that. बहुत हमने आसानी से चीज़ समझ ली, ठीक है? Guys, the primary we would say, कुछ किताबों में लिखा होता है कि जो primary movers होते हैं, there's a word that they use, movers / drivers of क्या कहते हैं, ड्राइवर्स ऑफ चेंज, दे से कि दीज आर द सोडियम आयंस, ठीक है? ये क्यों होते हैं? लेट्स लुक एट इट. ओके, अच्छा, ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज गोइंग टू बी अ टेम्परेरी स्टेट, ठीक है? दिस इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ टेम्परेरी स्टेट, ठीक है? हम इसको थोड़ी देर बाद रिज्यूम करवा देते हैं, ठीक है? ओके, the language that we use is कि we'll say कि this is going to be depolarized, ठीक है? तो whenever they're saying कि oh the membrane was depolarized, it means that the membrane was conducting and the membrane essentially एक action potential आ रहा था, ठीक है? Okay guys, now let's talk about the different stages of action potential, ठीक है? If you look at this, फिर आप एक दफ़ा सारे को देखेंगे तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है? Okay, so if you talk about the stages, essentially the first thing that we're going to be talking about is a stimulus. कि कोई भी stimulus आया और उस stimulus ने हमारे पास किया क्या कि it's going to be opening our voltage gated channels, ठीक है? और कौन से voltage gated channels? Voltage gated sodium channels, ठीक है? तो हमारे voltage gated sodium channels जो थे they opened, ठीक है? And as a result of this, sodium started, sodium को हमने क्या किया था? S for sodium, S sorry you are out, ठीक है? याद है ना, ये हम लोगों ने किया था. Over here sodium sorry you are out, potassium please come in. Okay, अच्छा, let's come back here. Now sodium is coming in, sodium in. Guys, sodium का charge क्या होता है? Sodium is positive, so the action of sodium coming in, this starts the depolarization process, ठीक है? This is why we say कि sodium is going to be the primary, sorry just a second, okay, sodium is going to be the drivers of change. बस MD CAT की कुछ किताबों में लिखा हुआ था, ठीक है? I think it's a really stupid way of classifying it, ठीक है? Of calling it, मतलब you don't need to call it like this, लेकिन anyways चलो, okay, हमारे पास आना शुरू हो गया. Okay, अब guys एक ना बात आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है,
ठीक है. एंड आई गो इनटू दिस इन अ लॉट ऑफ डिटेल व्हेन आई एम टीचिंग माय ए लेवल स्टूडेंट्स, बट अभी के लिए मैं उतनी डिटेल में नहीं जा रहा बिकॉज इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड हेयर. बट बेसिकली जो हमारा स्टिमुलस होता है ना, स्टिमुलस मस्ट क्रॉस थ्रेशहोल्ड वैल्यू. ठीक है, must cross threshold value. Essentially the world that we live in, we have a lot of, it's a very happening world. There's a lot of different things that are happening all around us, right? So हमारे पास ना, our brain has a couple of different systems to essentially filter out the background noise, to filter out unnecessary details so that we don't have, जिसे हम कहते हैं ना सेंसरी ओवरलोड, हमें सेंसरी ओवरलोड ना हो जाए. ठीक है, टू प्रिवेंट दिस जो स्टिमुलस होता है ना, इट हैज़ टू क्रॉस अ सर्टेन थ्रेशहोल्ड वैल्यू. ठीक है, इसकी दिस इज द रीजन वाई छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, इवन दो आवर रिसेप्टर्स आर एबल टू पिक देम अप, आवर ब्रेन एसेंशियली फिल्टर्स देम आउट. हमारा दिमाग कहता है अच्छा भाई दिस इज नॉट गोइंग टू बी दैट इंपॉर्टेंट, एंड वन ऑफ द वेज इट डज इज इट बाय यूजिंग दिस थ्रेशहोल्ड वैल्यू. तो एसेंशियली हमारे पास जो थ्रेशहोल्ड वैल्यू होती है, द स्टिमुलस मस्ट क्रॉस द थ्रेशहोल्ड वैल्यू. ऑलराइट, अदरवाइज हमारे पास नहीं वो हो गए. ठीक है ना. आई वांट यू गाइस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इट वर्क्स. अंडरस्टैंड तो तुम लोगों ने कर लिया, जस्ट लेट्स जस्ट सी हाउ इट वर्क्स. अच्छा, स्टिमुलस आया है, लेट्स लुक एट टू सिनेरियोस. ओके, एक है जिसमें इट इज ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड, एक सिनेरियो जिसमें दिस इज लेसर देन द थ्रेशहोल्ड. लेट्स लुक एट बोथ सिनेरियोस. ऑलराइट, व्हेन इट इज ग्रेटर, स्टार्ट में क्या हुआ था, दोनों में स्टार्ट में सेम चीज़ हुई थी. लेट्स से 5 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वर ओपन, 5 वोल्टेज गेटेड sodium channels were open. ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, आई मेड अ स्मॉल मिस्टेक. ओके, लेट्स से क्योंकि वहाँ पे इम्पल्स ग्रेटर थी, तो यहाँ पे लेट्स से 10 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स वर ओपन. एंड बिकॉज गाइज 10 वोल्टेज गेटेड चैनल्स वर ओपन, ऊपर नीचे 5 हुए थे, तो बिकॉज 10 वर ओपन दिस वॉज एबल टू ओपन मोर चैनल्स. ठीक है, ओके, एसेंशियली ट्राई नॉट लुक इट लाइक दिस. यहाँ पे देखो कि इस पर उन्होंने थोड़ी सी फोर्स लगाई. ठीक है, लेट्स से यहाँ पे जी मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाई, लेकिन ये हिला थोड़ा सा, बट इट डिड नॉट फॉल. बट देन मैंने यहाँ पे 10 न्यूटन्स की फोर्स लगाई, जिससे ये खुद ब खुद अब गिरना शुरू हो गया. ठीक है, स्टार्टेड टू फॉल. सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. लेट्स से 10 वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल दें, जस्ट दीज 10 चैनल्स ओपनिंग, इट ऑटोमेटिकली ओपनड मोर चैनल्स बिकॉज स्टिमुलस ज़्यादा था. ठीक है, अच्छा, लेकिन जहाँ पे मेरे सिर्फ 5 वो थे, ठीक है, did not open more channels, more voltage gated channels did not open more, and as a result of this impulse ended up dying. ठीक है, we say the impulse died. And guys, will an action potential be generated? Nope, it will not be generated here, it will be generated here. Okay, so once we've talked about this, हमने stimulus की बात कर ली है. अब हम लोग चलते हैं कि what is essentially going to be happening. voltage gated sodium channels खुल गए, अंदर हमारे पास आयंस आना शुरू हो गए. ओके, once we reach around plus 40 millivolts, ठीक है, we realize कि अच्छा यार अब थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, let's just relax. ठीक है, so now हमारे जो सोडियम, I'll just write सोडियम voltage gated channels होते हैं ना, these will begin to close. ठीक है, अब ये सारे बंद होना शुरू हो गए. ठीक है, अच्छा guys, when these start to close at this exact point, ठीक है, एंड थोड़ा सा लैग भी आ सकता है. ठीक है, हमारे जो पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना, नाउ दे आर गोइंग टू ओपन. ठीक है गाइज, व्हेन दीज आर गोइंग टू बी ओपनिंग, ठीक है, अब आप मुझे जल्दी से बताएं हमारी क्या पोजीशन थी. द पोटेशियम आयंस वर इट सिटिंग इनसाइड. The concentration of the potassium inside potassium ions was more inside. So guys, because we had more potassium inside, these channels opening, it basically caused it caused outflow. Efflux भी कह सकते हैं, मेरे जहन से निकल गया था word. Okay, it caused efflux or outflow of potassium ions. ठीक है, now these ions are starting to move outside. ठीक है, सेम चीज़ होगी. ठीक है, थोड़े से खुलेंगे, उसके बाद मोर विल स्टार्ट ओपनिंग, मोर विल स्टार्ट टू ओपन. ओके गाइज, वेरी सिंपल स्टाफ. अच्छा, एक जो चीज़ हम लोगों ने बात करनी थी वो ये करनी थी गाइज, व्हाट इज़ हैपनिंग. ठीक है, मुझे जल्दी से एक चीज़ बताएं कि जब आउटफ्लो हो रहा है पोटेशियम आयंस का, द इनसाइड इज बिकमिंग मोर नेगेटिव, द आउटसाइड इज बिकमिंग more positive. The outside is becoming more positive. Okay,
सो इस चीज़ को हम लोग कहते हैं कि जी हमारी हाइपर पोलराइजेशन की स्टेट में हम जा रहे हैं। मैं समझाता हूँ। बेसिकली देयर इज़ अ डिले, लेट्स से कि जी दीज हैव स्टार्टेड टू वर्क एंड आउटफ्लो होना शुरू हो गया है और मैं अपने -65 मिली वॉट्स के पास आ गया हूँ। -65 मिली वॉट्स पे, आई राइट इट हियर, अराउंड -65 मिली वॉट्स आई वांट माय पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स टू क्लोज। मैं कहता हूँ कि भाई ये बहुत हो गया, अब आप बंद कर दें। लेकिन गाइज यहाँ पे देयर इज़ गोइंग टू बी अ डिले, एंड गाइज बिकॉज ऑफ दिस डिले, ये डिले मुझे बहुत महंगा पड़ेगा। बिकॉज ऑफ दिस डिले आई एम गोइंग टू बी हैविंग समथिंग कॉल्ड हाइपर पोलराइजेशन। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब है, एंड दिस इज टेम्परेरी बाय द वे, दिस इज नॉट परमानेंट, दिस इज टेम्परेरी। ठीक है, हाइपर पोलराइजेशन का क्या मतलब है कि मेरा जो मेम्ब्रेन है दैट इज मोर नेगेटिव। ठीक है, मोर नेगेटिव। ठीक है, तो इट कैन ओवरशूट, इट कैन गो अबव -65 मिली वोल्ट्स। ओके गाइस, इस पॉइंट पे जाके हाइपर पोलराइजेशन भी हो गई। अब हमारे पास द सोडियम गेटेड, सॉरी, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी हैपनिंग, अब हमारे पास द स्टफ दैट वी डिड ओवर हियर, दीज थिंग्स they will start to work. ठीक है, so now we will say कि जी I will say कि machinery of resting potential this will take over. ठीक है, and by taking over what will they be doing, they will be bringing it, अब उसको स्टेबलाइज करेंगे। मैंने एंड पे बात की थी ना, कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं जो स्टेबलाइज कर रही होती हैं। अब हम आराम से अपने रेस्टिंग पोटेंशियल को एक साइड पे स्टेबल कर देंगे कि ना तो आपने हाइपोपोलराइज होना है ना तो आपने हाइपर पोलराइज होना है, यू जस्ट स्टे एज इज। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी स्टेबलाइजिंग एंड एसेंशियली मेंटेनिंग इट till another action potential comes. Guys, let me do a quick overview. ठीक है, हमने किया क्या, stimulus came, there was a voltage gated sodium channel that opened. ठीक है, because it opened, sodium which is positive started to move inside. ठीक है, हमारे पास originally क्या था, this is the arrangement that we have, that there's more positive stuff outside, specifically sodium is going to be outside and there's less positive stuff inside, which means कि this is negative, this is positive, but because we had a stimulus, sodium started to move inside and because of this movement this place started to become positive. ठीक है, तो we will say अब depolarization हो रही है, जो difference था gradients का, ये देखिए जो difference बना हुआ है gradients का, ये ख़त्म होना शुरू हो गया, polarization ख़त्म होना शुरू हो गई है। ठीक है, okay, sodium started to move inside. Okay, the next very important thing, like वैसे for your understanding and also for your exam purposes, is for you to understand that the stimulus must cross the threshold value. If it is greater, let's say बहुत ज़्यादा ही उसने 10 वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स खोल दी, इसकी वजह से और चैनल्स खोल गए, लेकिन लेट्स से वाज अ लेसर इम्पल्स, ठीक है, या लेसर स्टिमुलाई थी, ठीक है, उसकी वजह से सिर्फ 5 खुले और इम्पल्स ख़त्म हो गई, इम्पल्स डाइड आउट। ओके, मूविंग ऑन, वी हैड लेट्स से +40। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सोडियम अंदर आता गया आता गया आता गया, आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम वी रीच 40 मिली वोल्ट्स। ठीक है, 40 मिली वोल्ट्स के टाइम पे वी डिसाइडेड कि ब्रो दिस इज़ नाउ टू मच, हमने अपने सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स बंद कर दिए। ठीक है, वंस वी क्लोज दीज चैनल्स, नाउ आवर पोटेशियम चैनल्स आर गोइंग टू ओपन एंड पोटेशियम चैनल्स ने आउटफ्लो करवाना है ऑफ सोडियम आयंस। गाइज, इफ आई क्विकली ड्रॉ अ डायग्राम दैट आई मेड, जिसे मैंने पहले बनाया था, ये मेरे पास सारे आयंस बैठे हुए हैं, अब मेरे पास अंदर ज़्यादा आ गए। ठीक है, अंदर ज़्यादा आ गए नाउ, लेकिन पोटेशियम इज़ मोर हेयर। देखा, अब मैं अपने केमिकल ग्रेडियंट की हेल्प ले रहा हूँ। पहले मैं अपनी इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को यूज़ कर रहा था, अब मैं अपने केमिकल ग्रेडियंट की एसेंशियली हेल्प लेने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा पोटेशियम जैसे ही बाहर जाना शुरू करेगा, उस चीज़ की वजह से मोर चैनल्स विल स्टार्ट टू ओपन एंड आई विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन। सो गाइज, एसेंशियली एक्शन पोटेंशियल का प्रोसेस था यहाँ तक। एक सेकेंड में आपको, इफ़ आई डिवाइड ऑल ऑफ दिस into more digestible portions, point 1 and point 2 is what I will call as depolarization, कि यहाँ पे मैं depolarization करवा रहा हूँ। ठीक है, and यहाँ से लेके यहाँ तक is where I have started the process of repolarization। ठीक है, ओके, और यहाँ से लेके यहाँ तक this is going to be the process of hyperpolarization, and then finally this is the part where I would say कि I'm trying to stabilize my polarity, stabilize it। ठीक है, so guys, this is what I am going to be doing। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया है, this is great, you deserve a break। ठीक है, because this video I understand थोड़ी सी लंबी थी, but एक छोटी सी मैंने चीज़ बस डिस्कस करनी है, then we are done with this video। okay, so guys, action potential
एंड रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है, दो चीज़ें. एक्शन पोटेंशियल गाइस, प्लीज़ 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 ऑलवेज रिमेंबर दिस इज़ पैसिव, ठीक है, एंड दिस इज़ एक्टिव. ओके, दिस इज़ पैसिव, दिस इज़ एक्टिव. इफ़ यू कम टू आवर डोमिनोज वाला एग्जाम्पल, क्विकली लुक एट दिस. हमने इनको मेंटेन किया हुआ था, रेस्टिंग पोटेंशियल मेंटेन किया हुआ था. यहाँ से एक स्टिमुलाई आया, इफ़ इट वाज इनफ, इफ़ इट वाज एबल टू फॉल इट, अगर फॉल इट कह रहा है, इफ इट वाज एबल टू मेक दिस फॉल, वो आया, उसने इसको हिट किया, उसने इसको हिट किया, उसने इसको हिट किया, उसने इसको हिट किया, द एक्शन पोटेंशियल वाज मूविंग, ठीक है, द एक्शन पोटेंशियल वाज मूविंग. ये पूरी ऐसे करके इम्पल्स जाना शुरू हो की है. एंड गाइस, ऐसे जैसे ये एक एक्शन पोटेंशियल गुजरता है, दिस वन डोमिनो फॉल्स, ठीक है, वी बिगिन द प्रोसेस ऑफ रीपोलराइजेशन. और रीपोलराइजेशन प्रोसेस को इस तरह समझो कि हमने इसको उठा के ऊपर रखने की कोशिश की है, एंड इन द प्रोसेस हम लोगों ने थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा दी है. सो इंस्टेड ऑफ इट बीइंग 90, अगर मैं इसे साइड से देखो, इंस्टेड ऑफ इट बीइंग 90, मैंने थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लगा दी, तो इट सॉर्ट ऑफ वेंट लाइक दिस, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे हो गया. लेकिन फिर मेरे रेस्टिंग पोटेंशियल ने इसे जल्दी से सीधा करके खड़ा कर दिया ऐसे. जस्ट टू क्विकली रिकैप, इट वॉज ज़मीन पे पड़ा हुआ, मैंने उठाते हुए बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दी, वो ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल आया, उसने इसको सीधा करके स्टेबलाइज कर दिया, ठीक है. दैट इज़ ऑल दैट वी हैव गाइज. Congratulations, resting potentials and action potentials are now complete. In the next video, inshallah, I will be talking to you guys about synapses, ठीक है, how synapses work. And guys, just before that, wanted to talk to you about something कि हमारे पास ना इसमें कुछ memorization चीज़ें होती हैं, but I wanted कि मैं end पे, as you guys have seen in the previous chapters as well, कि जो आखिरी वीडियो होती है उसका एक मैं पोर्शन रखता हूँ जिसमें मैं जल्दी से memorization चीज़ें recap कर देता हूँ, ठीक है. So I will be going over those things over there कि आपने कौन से potentials याद करने हैं, कौन से नहीं याद करने, ठीक है. I wanted to make this video a bit more conceptual. So I hope you guys had fun. See you guys in the next video, inshallah. Allah Hafiz.